صاحب نے غلط بیانی کی ہے، میں طاہر صاحب سے کہہ رہا ہوں، نہیں آپ کو نہیں، طاہر صاحب کو کہہ رہا ہوں، بالکل بالکل پرلے درجے کا انہوں نے جھوٹ بولا ہے، پورا موقع دیا، آپ کو بات ہی کرنی نہیں آئی، آپ کو جواب ہی دینا نہیں آیا کہ ایشور کون ہوتا ہے اور پرمیشور کون ہے. انہوں نے بار بار آپ سے پوچھو بولو بولو بولو، آپ اپنا مائک میوٹ ہٹاتے تھے اور یہ کہہ دیتے تھے ہن بولنے دی اجازت ہے، وہ کہندے تھے بولو بولو دا جواب دیو. تسی صرف یہ کہتے ہو خبردار خبردار کسے نے بین الکافرین نے اگر کسے نے میں او تسی وہی رٹے رٹائے جواب سی تواڈے. تانوں بار بار پوچھیا اتھے، بار بار پوچھیا شرک کی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کس طرح شرک ہوندا جماعت دے وچ. دباب تسی پتہ نہیں کتوں پہنچو کے لے کے نہ کوئی جواب دیتا ہوں، اتنے لیا کے بندیاں چ بہ کے تسی جھوٹ بولدے پے ہو. ایڈی تہاڈی عمر ہو گئی ہے، یہ کوئی اچھی گل نہیں. ریکارڈنگ ہوئی ہے ساری، ایویں نہ بولی جو کہ میں گل کہہ دیاں گے تو پتہ ہی نہیں لگے گا کسے نوں کہ میں اتنے بڑی وڈی تیر مار. تسی مائک ہی 5 منٹ نہیں سی اپنا جڑا نا ہٹاندے کیونکہ تہاڈے کو جواب ہی نہیں سی، بار بار تانوں پوچھدے رہے نے. ہن تسی کہندے جی میں بڑے جواب دیتے نے اتنے، کیڑا جواب دیتا تسی اتنے؟ ہو گئی گل مکمل. علیم صاحب میرا ایک سوال ہے، میں گھنٹہ ہو گیا بات کل بھی انجی ہو رہا سی، ایک ایک بندہ بول رہا سوال کو لوگ کوئی سی سیریس جدوں گل میں کریے بولن تانوں لگا پرانے پھر دوسرا بول تار رہا صاحب چھیڑ لوڈ کے شفٹ کرنا شروع ہو جاتا. ہن تسی گل کیتی ہے مینوں گل کرن لگا یہ اس طرح ہی طوفان تسی گل جڑی کرنی سی کر لیتی ہے، سن لیتی تہاڈی گل. ہن کوئی سوال لے لو میں کوئی علمی گل کرو. چلو جی طاہر صاحب ہاں دسو جی کہ جواب دیو جی انہاں نوں یوسفی صاحب نوں. لو جی میں تہاڈے علمی سوال دا انتظام کر دیتا ہے. الطاف بھائی آ گئے. السلام علیکم الطاف بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیم بھائی کیا حال ہے؟ علیم بھائی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ نا مچھلی منڈی بہت بن جاتی ہے اور مزہ کوئی نہیں بنے گی. میں 1 منٹ کی 2 منٹ کا ٹائم ہوگا، کوئی بندہ نہیں بولے گا، کوئی بندہ بیچ میں ٹوکے گا نہیں. جی لائیں جی سوال لائیں. یوسفی صاحب کریں سوال، کس نے کرنا ہے؟ سوال یہ ہے جی کہ آپ کے مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ یاد رہے، اے سارے غور نال سننا جے تسے تہاڈے واسطے علیم صاحب بڑا لمحہ فکری ہے جی اے جڑی گل مرزا صاحب نے کیتی ہے. یاد رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی 2 حدیں مقرر کر دی ہیں اور فرما دیا ہے کہ وہ امت ضلالت سے محفوظ ہے جس کے اول میں میرا وجود اور آخر میں مسیح موعود ہے. یعنی ایک طرف وجود باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار روئی ہے اور دوسری طرف وجود بابرکت مسیح موعود کی دیوار دشمن کش ہے. اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اپنی امت میں داخل نہیں سمجھا جو مسیح موعود کے زمانہ کے بعد ہوں گے، اور مسیح موعود کا زمانہ اس حد تک ہے جس حد تک اس کے دیکھنے والے یا دیکھنے والوں کے دیکھنے والے اور یا پھر دیکھنے والوں کے دیکھنے والے دنیا میں پائے جائیں گے اور اس کی تعلیم پر قائم ہوں گے. غرض قرون ثلاثہ کا ہونا برعایت منہاج نبوت ضروری ہے، اور پھر نیکی اور پاکیزگی کا خاتمہ ہے، اور بعد میں اس گھڑی اور اس ساعت الفنا کی انتظار ہے جس کا علم بجز خدا تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی نہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی 2 حدیں مقرر کر دی ہیں. شروع ہوتی ہے یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ختم ہوتی ہے مرزا صاحب کے دور پر. اور مرزا صاحب کا جو دور ہے وہ بتاتے ہیں زمانہ مرزا صاحب کا 3 نسلوں تک ہے دیکھنے کے لحاظ سے. جس نے مرزا صاحب کو دیکھا، پھر جس نے مرزا صاحب کے دیکھنے والوں کو دیکھا، پھر جس نے ان کو دیکھا، وہ جب تک موجود ہیں اور مرزا صاحب کی تعلیم پر ہیں اس وقت تک مرزا صاحب کا زمانہ ہے. اس کے بعد والے لوگ فارغ ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں ان کو نہ تو پھر مسیح موعود کا زمانہ رہنا ہے اور نہ ہی ان لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں داخل سمجھا ہے. ہوں دسو جی میرے لحاظ نال آخری نسل اب آپ نے اب آپ نے کسی بندے نے نہیں رکے سکر بھائی ایک منٹ سکر بھائی الطاف بھائی بیٹھے ہیں. کسی بندے نے بعد میں ٹوکنا نہیں ہے. جو بندہ ٹوکے گا اس کو میں 2 دفعہ میوٹ کروں گا. اس کے بعد میں یہ پوری بات کرنے سے بات سمجھ آئے. جی الطاف بھائی بولیں آپ. جی السلام علیکم. یہ رسول صاحب نے جب سوال شروع کیا میں تو سمجھا تھا کہنے لگی تھا میں قرآن اور کوئی
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात करूँगा, लेकिन मसला ये है कि इनको कुरान और सुन्नत तो शायद इतनी हिफज नहीं है जितनी हज़रत मिर्ज़ा साहब की किताबें जो हैं वो हिफज हैं। लगता है इन्होंने हज़रत मिर्ज़ा साहब का जो है मिर्जा साहब ने नबी पाक तो झूठ बोले, हदीस ही बयान हो रही है। जिया साहब वो बोले हैं आपकी बात में, वो आपकी बात में बिल्कुल भी नहीं बोले। तम्मुल से बात सुनी है, बात मुकम्मल करने दे, वो बात गलत कर रहे हैं करने दे, अब अपने टाइम में सही कर देना, इतनी सी बात है, कोई जल्दी में टाइम की कमी तो है ही कोई नहीं। जी अल्ताफ भाई। हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम, अब ये जो हवाला इन्होंने पेश किया है, मुझे इसका चूँकि ना तो उन्होंने कोई हवाला दिया है, ना मैं उसको कोई उसकी मैं स्टडी करके आया हूँ। अगर तो हवाला पता होता मैं आगे पीछे पूरा मजमून पढ़ता, उस मजमून में क्या है। वैसे तो हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम की अगर हम दूसरी कुतब उठाएँ और दूसरे का उठाएँ, उसमें हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया है कि 300 साल का अरसा नहीं गुजरेगा कि ये लोग जो हैं वो इस अकीदे से जो हज़रत मसीह का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िंदा आसमान पर जाने का जो अकीदा है वो इससे बेजार आ जाएंगे। यानी कि अभी 300 साल भी जो हैं इसी दौर में चल रहे हैं। और फिर एक जगह हज़रत मसीह मौऊद ये भी फरमाया कि मैं जाऊँगा तो मेरा मज़हर सानिया जो है वो दौर शुरू होगा, जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वह जो शुरू होगी, तो वो भी इसी दौर में गिना जाता है। यानी कि हम इस बात के बकुल्ली जो है वो ईमान रखते हैं कि जो खिलाफत शुरू हुई है वो भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ही दौर है, क्योंकि रसूल मसीह ने फरमाया कि मैं जाऊँगा तो मेरा दूसरा दौर यानी कि जो खिलाफत जो दौर सानिया है वो शुरू होगा। लेकिन जो इन्होंने हवाला पेश किया उसका हवाला तो इन्होंने दिया। बहरहाल अगर ये कहेंगे कि मुझे ये हवाले दें तो मैं इनको जो अभी ढूंढ के वो दे सकता हूँ। जज़ाकल्लाह जी। जी नहीं जी, वो तो मेरे गैर ज़रूरी हैं, वो मेरे सवाल से मुतल्लक हैं ही नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं है मुझे हवाला पूछने की। जहाँ भी लिखा हुआ है ये है जी, जिल्द 15 है और सफ़ा नंबर 478 है। दो बातें इसमें मिर्ज़ा साहब ने की हैं। पहली बात यह है कि ये बात उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की है कि उन्होंने इस उम्मत की दो हदें मुकर्रर की हैं, यानी अव्वल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिर में मसीह मौऊद। और मसीह मौऊद का फिर मिर्ज़ा साहब ने ज़माना बताया है कि मसीह मौऊद का ज़माना वो 3 नस्लें उसको आप समझ लें देखने के लिहाज से, कि जिन्होंने मिर्ज़ा साहब को देखा, फिर जिन्होंने मिर्ज़ा साहब के देखने वालों को देखा और फिर जिन्होंने उनको देखा। जब तक वो मौजूद हैं दुनिया में और मिर्ज़ा साहब की तलीम पर कायम भी हैं, ये भी साथ शर्त है, उस वक़्त तक ज़माना है। उसके बाद के लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में दाखिल नहीं समझा। मैंने वही अर्ज़ किया ना, अगर आपका मुकम्मल हो गया तो मैं बात करूं। हाँ जी, मैंने यही अर्ज़ किया ना कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि मैं जाऊंगा तो कुदरत सानिया शुरू होगी। ये भी हज़रत मसीह मौऊद का ही दौर है। इनको देखना भी हमारे लिए ऐसे ही बाबरकत है जैसे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को हमने उनकी जानशीनी हम देख रहे हैं। खिलाफत जो है वो उसके बाद जो है, खिलाफत के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खिलाफत के बाद मलूकियत ही अपने दौर में भी खिलाफत के बाद मलूकियत ही जो है वो दी थी। अभी मैंने यही अर्ज़ किया ना, जो मैंने इस्तफ़सार किया इसके ऊपर, कि मैंने इस हवाले को अभी पढ़ा नहीं है, इसका पूरा मजमून नहीं पढ़ा कि ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कि किस हदीस से या किस हदीस से ये नतीजा अख़ज़ किया है। जब तक वो पूरा मजमून ना पढ़े हमें समझ नहीं आती। आपको प्रॉब्लम ये है कि आप लोग लेके आते हो 2-4, आप प्रॉब्लम ये है ना कि हमको पेश करते हो आप 2-4 लाइनें, वो 2-4 लाइनें या वो सफ़ा वो पूरा मजमून नहीं होता। अब एक किताब जो होती है वो 100 सफ़े की किताब है या 40 सफ़े की किताब है, पूरा मजमून नहीं पढ़ा होता आपने। या तो आप पढ़ते हैं तो आप सिर्फ वो निकालते हैं जो एतराज़ आपके लिए एतराज़ बनता हो, लेकिन हमारे लिए वो पूरा मजमून पढ़ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलो ये तो भुगत गए अलीम साहब, को और बंदा लभो। नहीं मैंने तो नहीं, उन्होंने जवाब आपको सारे मुदल्लल और ठीक जवाब दिए हैं। भुगतने का तो भाई मिर्ज़ा साहब की खिलाफत है या मज़र सानिया है या मज़र सालसा है या राबिया है या खामसा है, जो कुछ भी है वो मिर्ज़ा साहब के ज़माने के अंदर अंदर ही है, क्योंकि उसके बाद वालों को बकौल मिर्ज़ा साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत में दाखिल ही नहीं समझा। लेकिन आप ये खिलाफत समझे, मज़र सानिया समझे, जो भी समझे, इसकी हद मिर्ज़ा साहब ने मुकर्रर कर दिया कि ये 3 नस्लों तक की है। कि वो बताएं उनको क्या समझ है। एक मिनट सीकर, आपने सुना ना, आप सवाल दोहराओ और फिर आप जवाब दो इसको। सवाल दोहराओ, पहले सवाल क्या हुआ? मैं आपकी
बातों पे या आपके कहने पे कोई चीज नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मलिक कैसर साहब आपने को कहा डिमांड की जाए, थी, आप लोगों ने भाई सवाल करो, मतलब सवाल की डिमांड की वो थी, अब सवाल जवाब हुआ है तो आप इसको सवाल रिपीट है। कर दें। ट्रुथ सीकर हाँ भाई, जी, अगर मुझे इजाजत दे मैं मैं कर देता हूँ रिपीट। सवाल कर दो रिपीट। एक मिनट जमील साहब, आप नहीं, सीकर सीकर जो है ना, ट्रुथ सीकर जो है ना, सवाल नहीं रिपीट करेगा, सवाल क्या ऐसे था? नहीं, ऐसे नहीं। अब आपकी मर्जी से थोड़ी ये इम्तिहान कि मैं थोड़ी बैठे हुए हैं यहाँ पे, नीचे अल्ताफ भाई नहीं, बैठे हैं, वो बात कर रहे हैं इम्तिहान अभी, नहीं ले रहे, ऊपर जमील साहब इम्तिहान बैठे नहीं, हैं, जमील उन्होंने साहब कहा बात है, उन्होंने करेंगे। नहीं पढ़ा हुआ ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं पढ़ा होता इंसान के ज़हन में चीजें नहीं होती। अल्ताफ साहब वो मौजूद उन्होंने हैं, बिल्कुल, अल्ताफ अल्ताफ साहब साहब ने हैं। माकूल बात की, भाई मैंने नहीं मुताला किया, वो मैंने मुताला कहा करके जी, दिया। दो जब सेंटेंस अल्ताफ पकड़ के साहब अपनी तरफ मौजूद से हैं मतलब तो बना के फिर आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ मलिक कैसर साहब से पूछिए। अल्ताफ साहब ने कहा है मैंने मुताला बात नहीं कर किया रहे हैं, हुआ, सीकर मेरा साहब नहीं, बात कर रहे वो हैं। बाद में दे देंगे। निकाल लेता हूँ, मुझे बताओ कहाँ से पढ़ना है, बताओ। मैं सीकर, ट्रुथ सीकर को ये कह रहा हूँ, सवाल दोहरा दे, सवाल क्या था? हाँ, उच्चारण सवाल बात नहीं पता। आपको सफा नंबर हमने समझाया है। 478 है, मुझे बताएं आपके कौन से कहने सफा से पे पढ़ना है। मैंने आपके कहने पे अमल नहीं करना। सिंपल अच्छा, बात मेरे है कहने कि पे आप मत थोड़ा करो इखलास- जमील साहब, इखलास मैं दिखाएं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਿਆ वरना- ਕਰਨਾ, ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਰਦ ਸਿਕਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾ ਦੇ, ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ अच्छा, प्लीज मेरी मेरी हेल्प बात करो। सुने, इल्मी गुफ्तगू है, आगे बढ़ने दे। ऐसे बंदे को क्यों लेके आते हैं अलीम साहब, जो इतना आके बेवकूफाना बातें शुरू कर देता है? आप अभी बात करेंगे, जवाब देंगे, या फिर अल्ताफ भाई बात करना चाहते हैं? मैं सजेशन दे रहा हूँ कि मलिक कैसर साहब को कहें कि उनको क्या समझ है, क्योंकि इन लोगों का तरीका ये है कि आधी बात पढ़ के ना, बस आधी बात पढ़ते हैं और अपने तरफ से मतलब बनाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ मलिक कैसर साहब को आजमाते हैं कि आधी बात जो सुनाई है इसने डॉक्टर डेरिंग ने, उसके फार्मूले के हिसाब से इनको मलिक कैसर साहब को क्या समझ आई। तो यूसुफ साहब से पूछ लें, और मतलब कैसे सर यूसुफ साहब को यूसुफ मलिक कैसर मैं साहब बताता हूँ, लेकिन ट्रुथ सीकर को पहले इसको पहले ट्रुथ सीकर को एटिकेट्स तो सिखाए ना। मैं समझाता, मैं कहता हूँ ट्रुथ सीकर को एटिकेट्स तो बताए ना, कि बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं ऐसे। देखें, सवाल डॉक्टर डेरिंग ने किया, मैं आपको कह रहा हूँ ओके ठीक हो गया। अच्छा, अब डॉक्टर डेरिंग ने सवाल किया है। देखें, आपकी डिमांड थी कि भाई बहस मुबासा जो है ना उसको छोड़ो, जो पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे। आपने कहा जी कोई सवाल लेकर आए, इल्मी गुफ्तगू करते हैं, पढ़ी लिखी बात करते हैं। सवाल आपने डिमांड किया यूसुफी साहब या डॉक्टर साहब सवाल करो। डॉक्टर साहब ने एक बड़ा बेहतरीन सवाल किया है, और फिर मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। उन्होंने जो सवाल किया है उसका जो अल्ताफ साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा जी मैंने इसका मुताला नहीं किया हुआ। डॉक्टर ये ट्रुथ सीकर ने कहा जी कि मलिक कैसर साहब बता दें ये उन्होंने क्या बात की, उन्होंने क्या समझ आई। लेकिन आप सवाल तो मेरी सुन ले अलीम साहब, जवाब क्या अलीम साहब सुन तो लेना। मैं क्या हो गया अल्लाह के बंदे, मैं खोल के बैठा हूँ किताब। ट्रूथ सीकर्स जो है ना सिर्फ सवाल दोहरा दे, इसको सवाल की क्या समझ आई है, ठीक है, सवाल दोहरा दे। या चले इस तरह कर लेते हैं, ट्रूथ सीकर साहब को पूरे सवाल में, इसमें से 2-3 सवाल हैं एक्चुअली, इसमें से कोई एक जुज ले ले अपनी मर्जी का, कि जो इसको ये समझ आई है कि मुझे ये समझ है, उसका जवाब दे दे। ट्रुथ सीकर भाई, मुझे 1 मिनट इजाजत दीजिएगा। इन्होंने यूसुफ भाई ने मेरा नाम लिया तो मैं इनको जवाब दूंगा। मैंने इनकी, वैसे तो ये जो ज़िया रसूल साहब हैं, इन्होंने सवाल नहीं किया, इन्होंने एतराज़ किया है। सवाल नहीं था इनका, एतराज़ था। तो अच्छा, ये भी बता देना किस पे एतराज है। जितनी मेरी समझ थी, जितना मैंने इनको जो जवाब दिया है, वो हज़रत मसीह मौद की अपनी तहरीरात से मुकम्मल अकायद के साथ जवाब दिया है। अब देखें ना, एक बंदा कुरान भी पढ़ता है तो वो उसको समझता है। हम जैसे हम लोग कुरान पढ़ते हैं या आप लोग कुरान पढ़ते हैं, उसको समझने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है ना, और उसको उसके मारफ को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक और बंदा है जिसको हम मलून, जिसको हम मारूफ नहीं कहते, कुरान उसने भी पढ़ा है, लेकिन उसने पढ़ा है एतराज़ उठाने के लिए। तो यही मामला यहाँ पे भी हैं कि जब हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम किताबें हम पढ़ते हैं तो हम उनको पूरे अकायद के साथ देख के, उनके पूरे मज़ामीन के साथ समझ के पढ़ते हैं। आप लोग जब पढ़ते हैं तो आप लोग सिर्फ एतराज़ के लिए पढ़ते हैं कि हम में से हमको इस छोटी सी इतनी बड़ी किताब में से एक लाइन मिल जाए जिसके ऊपर हम एतराज़ उठा सकें। ये मामलात है। हमारे असल जो हमारे जो असल जो अकायद में जो हमारी जो डिफरेंस है, उस पर हम गुफ्तगू नहीं करते। मिर्जा साहब को चलेगा जी, हजाते हिस्सा तो करो। इस तरह नहीं, मैं जब आप लोग बोल रहे थे ज़िया भाई नहीं, ज़िया भाई आप नहीं करेंगे। रज़ा साहब मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, बात खत्म हो गई, फिर आप उनकी बात सही करें, गलत बात करें करने देना जी। अलीम साहब दोनों भाई बोले हैं, मैंने एक दफा भी इंटरप्ट नहीं किया, और ना मेरी आदत है कि मैं इंटरप्ट करूं। अगर मछली मंडी लगानी तो फिर मैं भी लगा सकता हूँ। बात यह है कि हमारे जो बुनियादी अकायद में जो डिफरेंस है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो आसमान पे जिंदा जाना है और दूसरा ख़त्म नबूवत है। हम उसको हल नहीं करते।
میں اب ضیاء صاحب کو یا یوسفی بھائی کو یا ملک قیصر صاحب یا علیم صاحب کو میں سارا دن پورا سال لگا کے حضرت مسیح علیہ السلام کی کردار پہ بات کر کے ان کو سچا ثابت کر بھی دوں، بعد میں یہ ہاتھ اٹھا کہتے کہ ہم تو نہیں مانتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے جو ہے وہ مانتے ہیں، تو پہلے کیوں نہ ان معاملات کو حل کیا جائے جو ہمارے درمیان زیادہ جو ہے وہ عقائد کی جو ڈفرینس ہے ان کو پہلے ہم ڈسکس کریں۔ تو میرا تو یہ مشورہ ہے کہ ہم پہلے اپنے بہت عقائد اعلیٰ، کو ڈسکس کریں۔ درست بات ہے آپ کی، درست بات ہے۔ ضیاء صاحب آپ مائک کھولیں، آپ بتائیں کیا مرزا صاحب کی صداقت پہ ہم آپ کو دلائل کیوں دیں؟ دلائل دیں، بعد میں مرزا صاحب کو سچا ثابت کر بھی دیں، مسئلہ ختم نبوت تو پھر موجود ہے۔ تو اگر ختم نبوت ایک بندہ کوئی آپ کے سامنے اقرار کر لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، یا یہ اقرار کر لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہی کر لیتا ہوں، کسی پیغمبر نے آنا ہے، تو پھر کیا مرزا صاحب سچے ہو جائیں گے؟ پھر بھی تو ہم پوچھیں گے بھائی مرزا صاحب کیسے سچے ہیں؟ پھر اس سے کون سا مسئلہ حل ہوا؟ یہ آپ مجھے بتا دیں۔ تو بھائی یہ بات ہر طرف سے وہیں آ کے ختم ہونی ہے مرزا صاحب پہ ہی۔ حضرت عیسیٰ، آج بھی میں نے سوال کیا تھا کہ چلو جی میں اگر مان لوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، پھر آگے سم بکم عمي فهم لا يرجعون، یہ لے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں جی، میں چلے مان لیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر نے آنا ہے۔ آپ بتائیں جی مرزا صاحب کیسے نبی ہوئے؟ بسم اللہ کریں جی۔ لیکن میں بات کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں میرے محترم ایک منٹ مصطفیٰ بس ایک منٹ الطاف بھائی سے پوچھ بتائیں۔ لیں، وہ رسپونڈ کریں گے تو پھر جمیل صاحب رسپونڈ کر دیں۔ الطاف بھائی آپ رسپونڈ کریں گے اس بات کو؟ جی میں کہہ دیتا ہوں، اگر اجازت دیں، دو بھائی خیال میں یہ بھی بڑے ہمارے جمیل بھائی اور غالباً سکر بھائی دونوں ہیں، بڑے ہمارے معتبر اشخاص ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی جو ضیاء صاحب نے کہا نا کہ میں فرضی طور پہ مانتا ہوں، یہاں پہ اگر عقائد پہ بات کرنی تو فرضی بات نہیں ہوتی، یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ اگر ہم نے اگر آپ بول رہے ہیں پھر یا پھر میں بول لیتا ہوں، اگر ہم نے فرضیات پہ چلنا ہے تو فرضیات تو پھر بہت ساری چل سکتی ہیں، فرضیات پہ نہیں ہم جانا، ہم نے جانا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہے۔ اگر ہم نے ایمانی باتیں بھی جو ہے ہم نے فرض کر لینا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت بند نہیں ہوئی۔ آپ نے یہ نہیں کہا ایک پیغمبر نے آنا ہے، آپ نے یہ لفظ کہا نا کہ میں سمجھ گیا ہوں جس ٹون سے آپ آئے ہیں نا کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے، نہیں، نبوت نہیں بند، ختم نبوت کا معاملہ ہے۔ اگر آپ یہ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ نبوت نہیں بن رہی، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ قرآن سے جو نبی کے آنے کے اللہ تعالیٰ نے سچے نبی کی جو نشانیاں پیش کی ہیں، اس پہ ہم پر جو بھی دعویٰ کرے گا، چاہے وہ مرزا صاحب ہوں، XYZ، میں ہوں، ضیاء رسول ہو، جو بھی ہو، پھر اس کو ہم قرآن پہ پرکھ لیں گے، دیکھ لیں گے کہ یہاں بھی اس کے جو کیا وہ قرآن کے مطابق وہ نبی بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ سمپل سی بات ہے، اتنا بڑا اس کا کوئی اتنی بڑی سائنس، راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں کوئی بھی۔ جی آپ بہت نے اعلیٰ۔ جی جمیل بھائی آپ بات کرنے وہی میں بات علیم صاحب آپ سکون ہے آپ کو؟ جی میں صرف ضیاء صاحب آپ سے درخواست کروں گا جمیل بھائی کو بات کرنے دیں، اس کے بعد پھر آپ ڈبل ٹائم الطاف دیں۔ بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا ضیاء رسول محترم کو کہ میرے محترم اگر آپ اس طرح کے اعتراضات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ کریں گے نا، تو اس سے تو 1,24,000 پیغمبر اس زد سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا۔ آپ ان کو سچا مان لیں، اور اس کے باوجود یہ اعتراض ان پہ نکلیں گے، پھر تو ہر کسی پہ نکلیں گے، کوئی نہیں بچا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے اعتراضات لوگ نکالتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آقا سے بہتر انسان دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، کیونکہ ہم ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جو میرے رسول نے کہا اور جو کیا وہ خدا کے حکم سے کیا، اور ان سے بہتر انسان پیدا نہیں ہوا۔ یہ ہمارا جس طرح خدا کے اوپر یقین ہے اس کی ایگزسٹنس پہ، ایسا ہی رسول کے اوپر۔ لیکن جو منکرین اور کافرین ہیں وہ اس قسم کے اعتراض تو نکالتے ہی رہیں گے، اور کروڑوں نکالے ہیں۔ جتنا زیادہ کیچڑ اس کامل انسان پہ اچھالا گیا، کسی بھی انسان پہ، عام سے عام انسان پہ بھی نہیں اچھالا گیا اس دنیا میں جب سے وہ آئے ہیں اس دنیا میں۔ یہ حقیقت ہے۔ تو ضیاء رسول صاحب اگر آپ کہیں جی کہ میں مان لیں کہ ختم نبوت جی جاری ہے، نبوت اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، تو مرزا صاحب جو ہیں اس کے بعد کیسے سچے ثابت ہوئیں گے ان اعتراضات کے بیس پہ؟ تو پھر تو میرے بھائی کوئی بھی نبی سچا نہیں، حضرت یوسف بھی سچے نہیں تھے، تو 14 سال زندان میں ڈال دیا زنا کے چکر جن کو۔ تو پھر اس خدا کا خوف کھائیں، جیسے الطاف بھائی نے کہا کہ پھر ہم ان کو قرآن کے اوپر پرکھیں گے، وہ کسوٹی ہے۔
जम्बा साहब को भी मान लें, जम्बा साहब को भी। नहीं मेहरबानी करें, मेहरबानी करें। इस जी जैसा बोले पूरे उतरेंगे हम। जम्बा साहब आपकी एक बात मैं कह दूं, आप भी कह दें। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ये जो ज़ियाद साहब हैं ये कह रहे हैं कि इनका इस पे ईमान है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत जारी है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, तो हमें ये बता दें कि वो कुरान की किन आयत से इन्होंने ये ईमान बनाया है, वो हमें आयत बता दें ताकि हमें पता चले कि वाकई इनको इस पे यकीन है। जी साहब सुन लिया जी। अब आपकी बारी है बाबा। सर एक सवाल है जी कि मिर्जा साहब की कौन सी बात है जो हम माने कि वाकई वो सच्चे थे? कोई एक बात बता दो। सबसे पहली बात ये है जनाब, सारे जितने लोग सुन रहे हैं 90 लोग जो नीचे सुन रहे हैं, ऊपर भी दोस्त बैठे हुए हैं, सबसे पहले पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने आके एक इबारत पढ़ी है और दो लोगों ने यहाँ पे ये कहा है, एक ने तो बहुत लंबी चौड़ी तमीद ही बांध दी ना कि सारे अंबिया कराम ही नहीं सच्चे साबित होते, नौज़ुबिल्लाह, और ये वो। दोनों ने बात क्या किया कि जी हम एतराज़ करते हैं और मैंने एतराज़ किया है मिर्ज़ा साहब पे। ले जी, अगली बात का जवाब देने से पहले मैं अपने टाइम में इन दोनों हबाब से पूछता हूँ, 90 लोगों को बता दें मैंने क्या एतराज़ किया है मिर्ज़ा साहब पे, बताएं जी, क्योंकि आप दोनों का दावा है कि जी मैं एतराज़ करने के लिए आता हूँ। और भाई मैंने जो इबारत पढ़ी है, जो सवाल उठाया, उसमें तो किसी किस्म का कोई एतराज़ बनता ही नहीं है सिरे से। वो तो एक बात मैं पूछ रहा हूँ कि ये बात जो मिर्ज़ा साहब ने फरमाई है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? लेकिन चलो आपने कहा जी एतराज़ है तो मुझे समझा दे, दोनों बारी बारी समझाएं जी क्या मैंने एतराज़ उठाया, बताएं जी क्या एतराज़ किया मिर्ज़ा साहब पे, बताएं। ठहरे, आपको ज़िया रसूल साहब इबारत की समझ नहीं आई कि आपको इतराज है कि जब तीसरी नस्ल खत्म हो जाएगी तो कोई भी मुसलमान नहीं बचेगा, ये कहना चाहते हैं? इंक्लूडिंग अहमदी खत्म हो गई उम्मत तो मिर्जा साहब ने ये कहा है और मैं आपसे पूछना चाहता था कि फिर क्या करना है आपने? क्या करना है? जो मिर्जा साहब ने कहा है वो तो पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। आप ये बताएं कि मजमून क्या चल रहा है इस किताब में, क्या जिक्र कहाँ? भाई इतराज क्या था, पहले मेरा सवाल का जवाब दे, इतराज मैंने क्या किया? आपका जो इतराज मुझे समझ आया, आपने इसमें कौन सा इतराज है जो मैंने मिर्जा साहब पे किया? मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने इस इबारत में फरमाया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीवार खड़ी कर दी है कि मेरे ज़माने से लेके मसीह मौत के ज़माने तक उम्मत मुहम्मदिया में सिर्फ वो लोग शामिल होंगे जो कि मसीह मौत को देखेंगे और मसीह मौत को देखने वालों को देखेंगे और उनको देखने वाले देखेंगे, उसके बाद और मसीह मौत की तालीम पे अमल भी वो करते हों, तो बाद जो भी लोग होंगे वो उम्मत मुहम्मदिया में शामिल नहीं है। ये आपने फरमाया ना? जी जी जी। इसमें जो मुझे समझ आया ये है कि आपने इतराज किया जी, उसके बाद क्या होगा जी कि मरज़ियत भी खत्म हो जाएगी। नहीं, मिर्जा साहब पे कौन सा एतराज किया इसमें, ये बताया ना, जो आप कह रहे थे कि ये तो सारे एतराज करते हैं पिछले अंबिया पे भी, इसमें मिर्जा साहब पे कौन सा एतराज बनता है वो समझाएं। लिखा किसने है? देखिए जी एक सेकंड मुझे इजाजत दें। मैंने जो अब अर्ज की थी वो यही की थी, जो आप जो जवाबन मैंने अर्ज किया था यही अर्ज किया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमाया था कि 30 साल या 33 साल जो है वो खिलाफत रहेगी, उसके बाद जो है वो मलूकियत होगी, उसके बाद बादशाहत होगी, जो भी उसका मफहूम है हदीस का। उसके बाद फिर मसीह के दौर में, ये मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ कि मसीह के दौर में जो खिलाफत अला मिनहाजन नबुआ जो जारी होगी, उसके बाद खामोशी है। तो ये वही हदबंदी है कि अभी तक खिलाफत तो चलेगी ना, जब तक वो खिलाफत चल रही है तो वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ही दौर है, ठीक है ना। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जानशीन जो है वो हज़रत मसीह मौऊद के जनाब, मेरा सवाल ये था कि इसमें इतराज मैंने कौन सा किया मिर्जा साहब पे? अब मैंने तो ये, मुझे तो यही समझ लगी कि आपको इतराज हुआ है कोई शायद, तो मैंने इसका इजहार कर दिया। तो बताएं कौन सा इतराज हुआ? मुझे क्या पता कौन सा इतराज है? मैंने इसका जवाब दिया था। आपकी जो उसके अंदर जो मिस्टर बॉम्ब साहब जो है वो भी नहीं बता सके और आप भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कौन सा इतराज है, लेकिन दोनों ने आते ही बात ये की कि इनका तो काम ही अलीम साहब इतराज करना है, बुनियादी मसाइल ये हल नहीं करते, बस इतराज करने के लिए आ जाते हैं। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि बता दे इतराज कौन सा, दोनों में से किसी को नहीं पता चल रहा इतराज है कौन सा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतराज ये है कि आप चलो, हाँ जी, इतराज ये है कि आप 4-5 लाइनें पढ़ के ना और फिर एक बात बयान करने की कोशिश करते हैं जो कि एक अच्छा तरीका नहीं है। आपको चाहिए कि आप खुद पहले सारे पेजेस पढ़ के आए उससे रिलेटेड,
इनसे ज़िया रसूल साहब ओ से भाई हम मिर्जा माजरत साहब पे कर कौन लेते सा हैं। एतराज हुआ है इसमें, ये समझाएं यार मुझे। वो हम माजरत कर लेते हैं, आप बताएं जी आपका इबारत पढ़ने का क्या मकसद है जी? आपने कोई इतराज नहीं किया, हमें गलती लगी, हम माफी मेरा इबारत पढ़ने का मकसद पहले भी बता चुका हूं, ये है कि आपके मिर्जा साहब ने हदबंदी कर दी है 3 नस्लों तक, तो फिर आप मुझे बताएं कि इन 3 नस्लों के बाद आप क्या करेंगे? ना 3 चो ना 13 चो। इसका बड़ा मिर्जा अच्छा साहब जवाब के भी दिया नहीं है रहेंगे, उन्होंने। उम्मत मोहम्मदिया से भी निकल जाएंगे। देखिए पहली बात तो ये है कि जो वो सारा जो मजमून है वो तो हमने नहीं ना हमारे सामने, इतनी देर में आपने पढ़ लेना था, 10 सफ़े पढ़े जाने थे। मैंने तो आपको बताया, आपके पास तो नहीं है किताबें, मेरे पास हैं, बताएं कौन से सबसे पढ़ना है। ये सुभान भाई ने, सुभान अल्लाह भाई ने आपको जवाब दिया है। जो हदीस पढ़ी है ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ओ भाई उसी से आप समझ जाएं कि सुन एक ले दौर मेरी, था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का, 4 बार उसके बाद खिलाफत का 5 दौर बार की था, दोहराए ना, तो वो एक उसके बाद मलूकियत आ गई। एक मिनट वो पहले खिलाफत थी, फिर मलूकियत थी, फिर तो सुन तो बादशाह लेना, करते करते सुन करते तो मिर्जा लेना। साहब का दौर आ गया। उसके बाद हजरत अब मिर्जा साहब कहते हैं मेरा दौर भी इतनी नस्लों तक है। उसके बाद फिर खिलाफत बारी बारी बात करेंगे, बारी बारी बात करेंगे। मलक कैसर साहब कमल करने दे, फिर बारी बारी। उस हदीस के हिसाब से बस समझ जाए इस बात को, जोन सी है ना वो कोई नतीजे पे नहीं उस पहुंचे। हदीस के हिसाब से मौलवी साहब आप ही जाके समझ जाएं, ये आप क्या करने बैठे हैं? तो बारी बारी बात हर होगी, बात बारी पे टोकने वाले, बोलने वाले जो है ना, लुच शरीफ को फ्राई करने वाले, ये किसी महफिल में ताहिर कोई साहब संजीदा ना लुच माहौल फ्राई पैदा करे होने ना, नहीं वो देते। तुझ सिकर बात कर रहा है, आप क्यों फ्राई कर रहे हैं? उसको करने दे बात। वो कभी कभी वो बोलता है पता नहीं क्या, उसको बोल लेने दे, अब वो बोल रहा है तो। जासूस साहब वो हवाला दोबारा दीजिएगा जरा। वैसे- नंबर 15 में कौन सा पेज नंबर कौन सा था? रूहानी खजाइन जल्द 15 सफ़ा नंबर 478। हाँ जी, ट्रुथ सीकर साहब। हाँ जी, मैंने आपको तो यही बताया, मुख्तसरन यही बताया है कि जो उन्होंने आपको समझाया अल्ताफ भाई ने, कि हजूर सल्लल्लाहु की हदीस के मुताबिक आप समझ जाएं कि जो एक दौर था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके बाद खिलाफत राशिदा का दौर था, फिर मलूकियत आ गई हदीस के मुताबिक, और वैसे भी ऐसे ही हुआ, ठीक है। और उसके बाद फिर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का दौर था, उसके बाद खिलाफत मनहाज नबूवा, जो कि इन अ वे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जिसको कुदरत सानिया कहा है, जो उन्होंने कहा है कि मेरी वफात के बाद होगा, तो आप उस लिहाज से समझ जाएं। बाकी ये है कि मजमून क्या है, आप खुद भी जाके उसको जरा बस उस लिहाज से समझ लीजिए, आपकी खिलाफत भी शामिल हो गई, लेकिन वैसे सानिया भी शामिल हो एक गई, बात है, और मिर्जा साहब कहते हैं ये 3 नस्लों तक। देखिए उसके बाद बात वाले ये है तो कि ये उम्मत मोहम्मदिया से खारिज हैं। देखें, मेरी बात ये है कि ये जो मजमून है ना, ये आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है आपको कुछ और समझ आए, मुझे कुछ और समझ आए। इससे कोई ये मसला हल करने के लिए तो ये कोई नहीं है ना कि इसमें आप ये एक ही बात को सुन लेना, फिर बीच में बोल पड़े हैं। फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आके जो है वो आप एक कोई मसला हल करना चाह रहे हैं या कोई डिसीजन मेकिंग के लिए कोई एक ख़ास चीज़ ले आए हैं। तो ऐसी इबारत तो एक समझने वाली चीज़ें होती हैं जो तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इसको यहाँ पे आके डिस्कस करना, जहाँ पे हम आपस में अकायद डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके चीज़ को डिस्कस करने की क्या मंशा है? चुके नहीं बनती कोई। हाँ जी, स्टेरियल साहब सही जवाब। बल्ले बल्ले बल्ले, स्टेरियल साहब आ गए, जबरदस्त जबरदस्त। सीकर साहब, हम स्टेरियल साहब भी आए हैं, हम ये समझना चाहते हैं, कोई भी सवाल पूछ लो अगर तमीज के दायरे में रहते हैं। ट्रुथ सीकर साहब, हम ये समझना चाहते हैं कि आज जो मिर्जा साहब ने हदबंदी की है उसके हिसाब से ये तीसरी नस्ल ही चल रही है। अब आज अगर कोई बंदा आपकी जमात में दाखिल होता है तो वो तो गया, ना इधर के रहे ना उधर के सनम, वो और कुछ सालों में ना वो मिर्जा साहब की जमात में रहेगा, ना ही वो उम्मत मोहम्मदिया में रहेगा। मोहतरम ज़िया रसूल साहब, जो गलत समझ रहे हैं आपने जो इतराज खड़ा किया तो सही समझा दें, क्या समझ सही आप बता दें, आपसे पूछ तो रहा हूँ इतनी देर से। मैं वही कह रहा हूँ, आप खुद भी जाके पढ़े और समझने की कोशिश करें। हम अभी कह रहे हैं गलत समझ आई, मैं कह रहा हूँ समझा दे, कहता है खुद पढ़ो जाके। वसी मजमून है, इसको हमें भी खुद पढ़ेंगे आगे, अगर जो पेजेस हमें यार वसी मजमून मेरे सामने किताब खुली, दसो केड़ी सफत पढ़ा। जितनी सतरें आप लेके आगे हैं, ये कोई तरीका अच्छा नहीं है। बहुत बुरा तरीका है, इंतहाई बुरा तरीका है। तो 4 लाइनें में लेके आए, मुझे बताएं, मेरे सामने खुली पड़ी।
इस पे ऐसे रोक रसूल देना साहब कि जिथों मैं- ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪੜੋ ਚਲੋ शाबाश जिथों स्टेरियर साहब वहां से मैंने पढ़ के और पूरा वो मुकम्मल मजमून है जो पढ़ के इनको सुनाया, ये मानने को क्या कहते नहीं, आगे पीछे से पढ़े, मैं कहता हूँ जी बताएं कहाँ से पढ़ना है, फिर कहते नहीं खुद जाके पढ़ो। मलक अब बता कैसर दें साहब तारक साहब, आप ही को मसला हल कर दें, आप ही मेरी हेल्प कर दें। वो मसला हल मलक करना है। कैसर साहब आपके आपके इजलास में शामिल हुआ हूँ तो मुझे नहीं पता आप तारक किस साहब मैं मामले आपको में- बता देता हूँ कि मैंने तारक साहब मैं बता देता हूँ, मैंने एक मिर्जा साहब का ना एक इक़्तिबास पढ़ा है, मेरे नज़दीक वो पूरा मुकम्मल मजमून मैंने पढ़ा है। ये कहते हैं कि नहीं इससे बात समझ नहीं आती, आगे पीछे भी ओके, पढ़ना अली है। मैं साहब, इनसे कहता हूँ जी बताएं, मेरे पास ओ मलक खुली पड़ी है, ताहिर कहाँ साहब से ने मौका पढ़ना है। दियो, ताहिर साहब की गल सुन लीजिए। और ये आप जब ये कहता हूँ तो कहते हैं नहीं खुद जाके पढ़ो। जी ताहिर और बुलंद साहब जी और यार ਇਹ ਜਦੋਂ यार जिया भाई ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਲੜਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ और तमस्कर उड़ाना, तो उत्थे फिर क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने। आहा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ बस शोर में शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मलक कैसर साहब? आज इन्होंने रूहानियत सिखाई है। इन्हें रूहानियत सिखाई है, सलूक दी मनज़लत हाय 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 Something like this, which is really nice. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ क्या बात कह रही थी। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਰਸ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ, ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ? रूहानियत इन्होंने सिखाई है कि हाँ रूहानियत है क्या चीज। रूहानियत है की सबक चीज। पका दियो तो फिर काम ठीक हो जाएगा। सबक सबक पका लो, दियो। सबक पका लो, सबक पका। अच्छा लेकिन ठीक। इन्होंने अच्छा। पकान तो नहीं देना। चलो ट्राई कर। हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਚਤਲਾ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਕਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਜ਼ਾਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? नहीं जी कोई हकीकत नहीं, शायद ही की हकीकत है। ਬਰੂਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਸ, ਉਹਦੀ ਬਜ਼ਾਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? अक्स दी कतन कोई हकीकत नहीं। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਹਿਮਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ, ओए होए ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ? कतन कोई नहीं रहती। जब गैर हकीकी लग गया ना, ਔਰ जिस ਉਹਦੀ तरह एक अहमदी ਫਿਰ होता है और एक गैर अहमदी होता है। ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੁੰਦਾ हाँ, ਹੈ। वाह। ਇੱਕ क्या बात है ਅੱਛਾ मलक ਫਿਰ ਇਹ साहब ਵੀ ਇਹ तशरीह ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। हाँ देखो, एक ज़िल्ली हो गया, बरूज़ी हो गया, गैर हकीकी हो गया, फिर मजाजी हो गया। एक हकीकी होता है, एक मजाजी होता है, हाँ जी। राइट? मजाजी हो गया, अक्सी हो गया, गैर राइट? मुस्तकिल। गैर मुस्तकिल हो गया, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, आहा। ਰਾਈਟ? ਗੈਰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? कतन नहीं रह जाती। फिर उस तो बाद अगर लेकिन- ये कह दिता जाए कि उन्हां दे नाल इतराज भी किया जा सकता है, इख्तलाफ। ਬਿਲਕੁਲ। फिर कुछ- ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ फिर भाई ਵਾਜ਼ੇ कुछ ਤੌਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੁਜਤਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲੇ? बिल्कुल बिल्कुल। ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ? एक तो ज्यादा दफा हजार। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫੇ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਹਤਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬੋਹਤਾਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਿਵਾਏ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਦਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ? ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ?
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਯੂਸੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਆਣ ਕੇ ਸਟੋਰੀ ਛੇੜ ਲਈ, 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਚ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬੋਲਦਾ। ਯੂਸੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰਫਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 1 2 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਮੁਕਾ ਵੀ ਲਓ। ਸਰ ਕਰੀ ਦੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਾਜ਼ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਚ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਬਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤ, ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਮੁਰਦਾ ਨੇ ਨਾ। ਪ੍ਰਸਤ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਦੀ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਕੀ ਥੁੱਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਪਰ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਥੁੱਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕੀ ਭਾਈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਥੁੱਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੱਟਣ ਚਟਾਨ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਯਾਰ ਦਲੀਪ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਕੱਚੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਆਏ ਹਾਸੀ ਠੱਠਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕੇ ਠੱਠਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਲਮੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੈਨ ਲਾ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਪੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਹਾਲਾਕਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਥੋੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਈਏ। ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੀ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ। जी अल्ताफ भाई तुम मौजूद हो? हाँ जी वालेकुम सलाम। मैं मोबाइल से थोड़ा सा पढ़ के आया हूँ, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन उसी हवाले से समझ लग जाएगी। उनको अभी दोबारा पढ़ाएंगे ना इंशाल्लाह, उन्हीं को खुद ही समझ लग जाएगी इंशाल्लाह। जी जिया साहब खोले माइक। अभी क्या जाए, अभी क्या जाए जिया साहब माइक खोलें, अब बात करें। नहीं अभी अभी वो जी 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 मुकम्मल कर ले वो पढ़ रहे हैं, अभी मुकम्मल कर ले तो फिर। जी तारिक साहब खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ पढ़ी है आके सारे ने सब तो पहले? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। दुआ सब तो पहले दुआ पढ़ो कि जालत से बचाओ की दुआ है, जालत से बचने की दुआ। या अल्लाह जाहिलों से बचा, और हमेशा दुआ ਉਹਦੇ ਇਹ ਦੁਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਦੁਆ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਹਿਲ ਮੋਡਰੇਟਰ ਲਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੀਮ ਭਾਈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਸਲ ਭਾਈ। ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਗਜ਼, ਹਸਦ, ਕੀ ਨਾ ਸ਼ਰਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ और हसद के शरारों में लत ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਹਿਲ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਉਮੇ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੀਆਂ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਹਿਲ ਮੋਡਰੇਟਰ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ। मैं देना जवाब मेरे को। फैसल भाई एक मिनट, शरारों में लत पत गोबर की मसील एक बदबूदार सोच के हामिल लोग। नहीं यार अलीम साहब, मैं दुरा देना ਤੁਹਾਨੂੰ ताकि याद रहे ਯਾਰ ਸਟੇਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ। ਸਟੇਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ अच्छा अपना माइक अलीम साहब इजाजत है? ताहिर साहब ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਿੱਖਣ ਦੀ बोलो 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 बोल
तकफीरियत और मुल्लायत की दलदल में धंसी हुई गोबर की मिस्ल एक जलील सोच का टोकरा सर पर उठाए, ये नफरत की अलामत जिनके दिल में हसद, बोगज और कीने के शरारे चल रहे हैं, वो कैसे समझ सकते हैं? हाँ, कैसे बात समझ सकते हैं? सही हसद के शरारे हैं दिल में बिल्कुल तुम्हारे, ये अल्फाज जिन्हें तुम बोगस की हवा दे रहे हो। अच्छा लिहाजा को यार मैंने समझ याद भी कर लें दो शेर, फिर मुश्किल हो जाना मेरे वास्ते एडा लम्मा फिकरा। अगू नाल दो शेर किस तरह याद करांगा? तकफीरियत और मुल्लायत की दलदल में धंसे हुए गोबर की मिस्ल एक जलील सोच का टोकरा सर पर उठाए। हाँ हूँ ठीक हो गया, आगे समझ। तकफीरियत और मुल्लायत की दलदल में धंसी हुई गोबर की मिसील एक बदबूदार सोच का टुकड़ा सर पर गलत अलीम साहब ते थल्ले टैक्स ध्यान रखो, तेरे टैक्स ध्यान रखो, लोग गालां कढने ने प्लीज, भाਵੇਂ ਆਪਣੇ वाले बंदे ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੂਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। गाली निकालने वाले बंदे को पक्का ब्लॉक किया जाएगा भाई, अब गाली ना कोई भी निकाले। अच्छा फिर अपने आप ਨੂੰ ब्लॉक कर लो। तकफीरियत और मुल्लायत की दलदल में धसी हुई गलीज सोच और गोबर की मिस्ल गलीज सोच का टुकड़ा सर पर उठाए हुए हसद, बुग़्ज़ और कीने के शरारे से लथपथ। वाह सोच के हामिल फैसल डार अलीम साहब सारा इम्तियाज अलीम साहब मेरी गल सुनो, उठाए हुए फैसल डार की सोच, इससे यही तो की जा सकती है। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। अपना अलीम साहब ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦਵਾਓ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦਵਾਓ। मेरी गल सुनो, गंदा बन शिकस्त बनोगे ना ते आना है। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਤੇ? ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ? किस डिजाइन ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸ डिजाइन ਦੇ ਬਣ भाई ये ਚੁੱਕੇ फिक्रा याद करना पड़ेगा, इन्होंने रोज सुनाना है। मैं याद कर लिया, गल सुनो ना इन्होंने मैं रोज सुनाना। अलीम साहब, अली गल सुनो, एक गंडा बंद शिगिर्द बनोगे ना ताज अमजद साहब दे, ते फिर फिक्रा सही आना। ਇਹ ਅਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ? ਅਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਚੱਕਰ? गंडे तो अंदाजा लाया मेरे। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਸਾ ਨਾ ਜਦੋਂ- ਖਾਈਂ ਰਾਈਂ ਦਾ ਹੈ। ना 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 ये गल नहीं है ये अच्छा मार्फत दी गल है। मेरे बॉस सन वो अराई सी राइट, और बड़े मेरे मोहसन भी और मेरे उस्ताद भी, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਿਚਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਸਬੇ ਤੌਫੀਕ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਦੀ ਤੇ ਖੈਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਸਾਈਂ ਦਾ ਵਸਾ ਨਾ ਖਾਈਂ ਰਾਈਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੀਂ, ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਵਸਾ ਨਾ ਖਾਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਰਾਈ ਕੰਮ ਪਿਆ ਤੇ ਆਈ ਜਾਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਚੋ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਪਟ ਰੱਖੋ। भाई की बात सुनो, अल्ताफ भाई की बात सुनो। डॉक्टर आईडी को या निकाल दें या इसको म्यूट करेंगे। डॉक्टर हू के नाम से डॉक्टर हू आप मेरे भाई फोन किया था मैंने, लेकिन आपको नहीं बाज आया। आप फैसल भाई आप तो नहीं है ना राई? तो मेरे भाई अच्छा आप कश्मीरी क्या बट है, डार है, मीर है? मेरा नाम फैसल डार है तो डार ही होगा ना यार। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता था आपका नाम। अच्छा इल्ताफ साहब आपने पढ़ी वो तहरीर? तो उस पर बात करें। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि जरा जो है वो बगैर लगी लिपटी जरा वो तहरीर ये चौधरी साहब खुद पढ़े। ये आप पढ़ दें, आपने निकाली, आप पढ़ दें, आप पढ़े ना, आपने निकाल दिया। मैंने कहा मैंने मोबाइल से पढ़ी है, इनके पास किताब में सामने खुली है, मैं वापस मोबाइल पे जाऊंगा तो फिर मेरी आवाज नहीं आएगी। जी जिया साहब पढ़े आप तहरीर, नहीं तो मुझे तो मैं पढ़ता हूं। कहां से पढ़नी है जी, बता कहां से पढ़नी? जहां से वो हाशिया शुरू है ना वहीं से पढ़नी शुरू कर दें। शक नबविया पीछे है, अहादीस नबविया को बनज़र गौर देखा जाए तो बहुत कुछ इनसे इन मुकाशफात को मदद मिलती है, लेकिन ये कौल
इसी हालत में सही ठहरता है, जबकि महदी महूद और मसीह मऊद को एक ही शख्स मान लिया जाए। और याद रहे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की 2 हदें मुकर्रर कर दी हैं और फरमा दिया है कि वो उम्मत ज़लालत से महफूज है, जिसके अव्वल पर मेरा वजूद और आखिर में मसीह मऊद है। यानी एक तरफ वजूद। ये आप कौन सा सफ़ा पढ़े हैं? 478 है रूहानी खजान का? जी जी नहीं, मेरे पास 478 ये नहीं है बिल्कुल। कौन सी जल्द खोली हुई है आपने? आप दा भी ना दस दियो यार, केड़ी किताब चो पढ़ रहे हो? वो पीछे तशरीफ ले गए हैं, तो जाफरी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। जाफरी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, आगे हैं वो। वालेकुम कौन सी अस्सलाम। जल्द का 470 पढ़ रहे हैं? मैं 474 तयाकुल कुलूब है जो किताब जो है ना रूहानी खजान की, उसमें तयाकुल कुलूब की किताब आ रही है, उसी जल्द किताब से पढ़- पढ़। हाँ बिल्कुल, 478 में यही है जो मैं पढ़ रहा हूँ। 478 में या आपको 478 का ना पता चल रहा होगा कौन सा होता है? सबको पता चलता है, आपको शायद पता नहीं चलता। होता है भाई, किताबों में तहरीफ तो हो ही जाती है ना, कोई बात नहीं है। मैं चेक कर रहा हूँ। अलीम साहब स्क्रीन ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਖੋਲਿਆ? ਉਹੀ ਹੈ ਉਹੀ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ? अब तो सफ़ा भी ਹੁਣ खा ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ 478 ਤਰੀਕੁਲ ਕਲੂਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 478 ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ। रूहानी खजान जिल्द 15। अच्छा जी, ये हुन मैं पढ़ा या कौन बंदा पढ़ेगा? ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ। अच्छा, थोड़ा खड़ा करो ना एक साइड पे जरा कैमरे नु। नबविया को बनजरे गौर देखा जाए तो बहुत कुछ आगे के इनसे इन मुकाशफात, तेज भाई, मुकाशफात को मदद मिलती है, लेकिन ये कॉल थोड़ा पीछे कर लें, आपको आसानी रहेगी। थोड़ा पीछे कर लें। हाँ, मिलती है, इस हालत में सही ठहरता है, जबकि मेहदी मऊद और मसीह मऊद को एक ही शख्स मान लिया जाए। और याद रहे कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की 2 हदें मुकर्रर कर दी हैं और फरमा दिया है कि वो उम्मत जलालत से महफूज है, जिसके अव्वल में मेरा वजूद और आखिर में मसीह मऊद है। यानी एक तरफ वजूद बावजूद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार, ये क्या है, दीवारें जी हैं, जी। और दूसरी तरफ वजूद बाबरकत मसीह मऊद की दीवार दुश्मन कश है। इस हदीस से साफ तौर पर मालूम होता है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को अपनी उम्मत में दाखिल नहीं समझा जो मसीह मऊद के जमाना के बाद होंगे, और मसीह मऊद का जमाना उस हद तक है जिस हद तक इसके देखने वाले या देखने वालों के देखने वाले और फिर देखने वालों के देखने वाले दुनिया में पाए जाएंगे, यानी कि तबा ताबईन, और इस के बाद होंगे और इसकी तालीम पर कायम होंगे। गरज कुरूने सलासा का होना बरायत मिनहाज नबूवत जरूरी है। और फिर ठीक है, जज़ाकल्लाह, काफी है जी। इस हदीस में रसूल मसीह फरमा रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही समझा है, लेकिन ये कोई हदबंदी नहीं है। किसने समझा है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझा है। यानी आप कहना चाहते हैं ये दुरुस्त नहीं समझा? दुरुस्त समझा या नहीं समझा, इस पे बहस नहीं अभी फिलहाल। यही तो बहस है। कैसे? क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि मिर्जा साहब सही समझ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक ने फरमाया वो मेरी उम्मत में नहीं है, उम्मत में दाखिल नहीं समझा। हाँ, रसूल पाक समझा, रसूल पाक वसल्लम तो ये भी समझा था कि अगर खजूरों की नबी पाक ने उम्मत में दाखिल नहीं समझा, फिर इसमें क्या? रसूल पाक वसल्लम तो ये भी समझा था कि खजूरों को अगर पाबंदकारी की जाए तो खजूरें हो जाएंगी। मतलब कि ये दुरुस्त नहीं है, आप कहना चाह रहे हैं गलत है। हम अपने मुंह से अल्फाज कहें, आप खुद समझदार हैं, समझ जाए जो भी समझना आपने। अच्छा, तो आगे जो मिर्जा साहब ने लिखा है वो भी गलत समझा है?
मैंने वही बताया ना कि मिर्जा साहब ने उसी का बयान किया आगे भी। मिर्जा साहब ने भी सही समझा या उन्होंने भी गलत समझा? मिर्जा साहब ने यही नहीं कहा कि जिसने सिर्फ मेरा जमाना देखा है या मेरे बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिर्जा साहब ने यही जो अंदाजा लगाया है वही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। कोई मिर्जा साहब ने यही लिखा हुआ है, बताएं मिर्जा साहब ने सही समझा या गलत समझा? हदबंदी नहीं की है इस पूरे हवाले को किसी भी भाई कर दी है, लिखा हुआ तो है, और मसीह मौत का जमाना इस हद तक है। आपको हदबंदी नजर आ रही है क्योंकि आपने भाई आपके मिर्जा साहब ने लिखा हुआ, पढ़े आगे, आगे पढ़े ना, आगे पढ़े, आगे पढ़े, उन्होंने आगे पढ़े, आगे पढ़े। मसीह मौत का जमाना इस हद तक है, क्या है? पढ़े यहाँ से बताया है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिर्जा साहब लिख रही हैं ये, दिखाएं कहाँ हदीस शरीफ है, वो दिखाएं। हदीस लेके आए वो कहाँ पे है जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझा है, लेके आए। ने ही बताना है कि मसीह मौत का लेके आए, हदीस लेके आए, शाबाश, हदीस लेके आए, हदीस लेके आए। अब ये जो मिर्जा साहब वो पूरा हदीस से जो इशारतन वो समझ वो ले आए, जिसमें इशारे हैं वो ले आए, जिसमें इशारे हैं ले आए। बस ठीक है। अब यहाँ तक तो ये तो समझ आई कि मिर्जा साहब ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। मिर्जा साहब ने जमाने का तयन अपनी तरफ से किया है। ये तमाम अहमदी अहबाब सुन लें कि ये मिर्जा साहब ने जमाने का तयन अपनी तरफ से किया है और फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को उम्मत में दाखिल नहीं समझा। गलत आप बात कर रहे हैं भाई, बात बारी बारी करें, अल्ताफ भाई की खत्म हो जाने फिर आप। नहीं अल्ताफ साहब, इस पर आपको हदीस पेश करनी पड़ेगी ना, तब आप कहेंगे ना कि ये ऐसे समझा। इस पर आपको हदीस पेश करनी पड़ेगी, फिर आप एतराज करेंगे। जब मैं वो तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो बड़ा वाक़या इल्जाम लगा दिया ना, अब आपको ये साबित भी करेंगे और अगली बात भी मानेंगे कि मिर्जा साहब ने भी गलत समझा। मैंने जो शुरू में आपसे अर्ज किया था कि पूरा मजमून पड़ेगा, लेकिन इसी में से उसका हल निकल आया। जो इतराज इन्होंने उठाया था वो बाहर निकल आया। उसके बाद मैंने हदीस जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार कर रहे हैं आप कह रहे हैं नबी पाक को नहीं समझ आई। मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप यही कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ नहीं आई। मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस पेश की थी आपके सामने सब दोस्तों को, उसका मफहूम पेश किया था। वो यही था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत होगी, खिलाफत के बाद जो है वो मलूकियत होगी, बादशाहत होगी, फिर पूछ रहा मैं इसका होगी। इसी हदीस से ये समझा गया है, शायद इसी हदीस से शायद ये समझा गया है कि वो मसीह मौत का ये दौर होगा। लेकिन हज़रत मसीह मौत कहाँ है? मसीह मौत के दौर की बात ही कोई नहीं है, ना कोई मसीह मौत का जिक्र है। यार तुसी बोल लो पहले, फिर वो हदीस शरीफ लेके आए जो आप पेश कर रहे हैं, वो हदीस लेके आए। साहब आपने बात मुकम्मल कर ली है तो आप खामोश हो जाए। जी मेरा मुतालबा है इनसे वो हदीस शरीफ लेके आए और आगे फिर उन्होंने बताना कि मिर्जा साहब ने जो आगे लिखा है कि मसीह मौत का जमाना इस हद तक है। अगर तो वो जमाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है तो वो हदीस ले आए, नहीं तो बताएं मिर्जा साहब ने सही समझा या उन्होंने भी गलत समझा। मेरी बात मुकम्मल हुई, हदीस शरीफ ले आए और अगली बात का जवाब दें। जी ठीक है जी। तारक साहब ते जाफरी साहब आए ने, जाफरी साहब ने मुलाकात करो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा तारुफ है, बिस्मिल्लाह। अच्छी गुफ्तगू चल रही। हाँ जी जाफरी साहब गुफ्तगू सुन रहे हो? जी बिल्कुल बिल्कुल नाइस पर्सनैलिटी ने, बड़े बाइखलाक गुफ्तगू करते ने और बड़ी सुलझी हुई गल करते ने। इन्हां दा जेड़ा एक खासा है कि ये तबादला ख्याल करते ने, मुनाजरा जेड़ा ना वो नहीं सही हुंदा। तबादला ख्याल राय दे, हाँ जी, नहीं अपनी राय पेश करो, अगले दी सुनो, फैसला आवाम ते छड़ दो बस। जी बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है। नाले अलीम भाई मेरी जेड़ी हमेशा नुक्ता नजर जेड़ा मेरा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलीम साहब, अल्ताफ साहब ने ज्यादा ड्रॉप हो गए ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਕਾਲ ਕਰੋ। मैं ना ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਅਲੀਮ ਭਾਈ। ठीक है सही है। वैसे मैं बोल के लिख रहा था और ਇਹ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ और मैं ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ और ये ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ और ਆਖਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਚਿਥੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਜੋ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ اے نبی جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے ان کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔ اب امت ہوتی ہے جماعت، تو وہ جماعت جب آگے سے پھر تیار ہونی تھی اور پھر وہی بنیاد جو ہے وہ امت کی پڑھنی تھی، اور باقی جو درمیان میں نکل گئے جو فرقے بن گئے اور آنے والے جس کی پیشگوئی تھی اس کو نہیں مانا تو وہ امت سے باہر ہیں۔ یہ ایسے موتی ہیں جو تسبیح سے گرے ہوئے ہیں باہر، تسبیح بکھری اور تسبیح سے گر گئے، لیکن ایک اس کو جوڑنے والا پرونے والا آیا، اس کو نہیں مانا، تو اس لیے یہ فرقے جو ہے یہ امت سے باہر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی اچھا ججا صاحب یہ بتائیں، یہ مرزا صاحب نے جماعت بنائی تھی یا فرقہ بنایا تھا؟ یہ سوال ٹھیک ہے، طارق صاحب دیں گے جواب اس کا۔ مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت بنائی تھی، لیکن وہ جماعت بھی ایک فرقوں میں سے جب فرقے زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں نا فرقے، تو ان میں سے جو کوئی ایک خدا کی طرف سے بندہ آتا ہے اور انہی سے لوگ نکل کر اس کے ساتھ جوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ بظاہر ایک فرقہ ہی ہے، اور حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ ایک فرقہ جو ہے وہ ناجی ہوگا اور وہ فرقہ نما جماعت ہوگی جس کا ایک مرکز، ایک امام۔ میرا سوال اور تھا کہ کیا مرزا صاحب نے جماعت بنائی تھی؟ جماعت بنائی تھی یا فرقہ بنایا تھا؟ ہاں، فرقہ نما جماعت ہے ان کی۔ انہوں نے فرقہ بنایا تھا یا جماعت بنائی تھی؟ جماعت اگر انہوں نے کہا کہ میں فرقہ بنا رہا ہوں تو پھر جس جگہ پر آ کر آپ نے بیٹھنا ہے، مجھے پتا ہے کہ انہوں نے وہ مردم شماری کے وقت لکھا کہ میرے فرقے کا یہ نام ہے، وہ اپنے فرقے کا نام بتاتے ہیں، میرے فرقے کا نام جماعت احمدیہ ہے۔ دونوں بھائی نہ لڑو، گل سنو، یہ بات ہے، نہیں لڑائی جھوٹ کیوں بول رہا ہے یار؟ تو ڈائریکٹ آ کو میں فرقہ بنایا ہے، قرآن پاک دے ممانا تے فرقہ نہیں بنانا۔ ٹھیک ہے، فرقہ ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک فرقے کو ناجی کہا ہے نا، فرقوں میں سے ایک کو کہا ہے نا، وہ ما انا علیہ و صحابی پر اسی کو کہا ہے۔ کتنے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اینو دسو بھائی جان، کسی نوں پتا ہوے تے دسو اینو کہ طارق صاحب سمجھاندے نے، پہلے دعا پڑھو۔ رب تعالیٰ فرما رہے نے قرآن پاک دے وچ تانوں پتہ نہیں بولیا کرو، بہرحال کرو گل۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک ہی فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک ہی فرما رہا ہے کہ فرقوں میں نہ بیٹھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو مرزا صاحب اور خود مسلمانیت سے نکل کے فرقہ بنا رہے ہیں، ہر چبل مرے دے ہر بندے چبل بنایا ہے تسا۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ دس دے نے طارق صاحب دسو انہاں۔ السلام علیکم، ساہ لیندے ہو کہ میں ہی بند کر رہا مسئلے حل ہو جانے نے، بس ٹھیک ٹھاک ہے جی۔ پہلے دعا پڑھو تے مسئلے حل ہو جانے نے۔ اللہ تعالیٰ سانو جاہل ہون تو تے جاہلاں دے وچ جان تو بچائے۔ جی آمین۔ دعا پڑھ لی مسئلے حل ہو جانے۔ پڑھے لکھے ہو بالکل صحیح کہ اللہ پاک جہاں نوں بچائے یہ نہ پڑھیا ہوندا مرزا صاحب نے کی لکھیا تے میں کدی نہیں سی کہنا کیونکہ مرزا صاحب نے فرقہ بنایا ہے۔ علیم صاحب، الطاف صاحب نے ایک باری لے تو لو، الطاف صاحب ایک منٹ اوپر آئیں، میں ویٹ کر رہا ہوں اپنا یار وہ نیچے ہیں، وہ جانا چاہ رہے ہیں، ان کو ایک دفعہ لے لیں ذرا پلیز، ذرا ایک دفعہ، بعد میں وہ چلے جائیں، اگر وہ جانا چاہیں تو بے شک ایک دفعہ لے لیں۔ میں الطاف صاحب کا ہی ویٹ کر رہا تھا اور تب سے وہ دوسرے دوست آ گئے، تو میں نے کہا چلو جب تک الطاف صاحب نہیں ہے تو بات کریں۔ الطاف صاحب تو وہ میرے خیال میں پڑھ رہے ہیں نا۔ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਮੇਰਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ الطاف صاحب ਮੋਡਰੇਟਰ ਰਹੋ, ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਬੜਾ। ਸਾਡੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਊਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। نہیں طارق صاحب تانوں کوئی نہیں کرتا صاحب میوٹ۔ چلیں میں آپ سے ذرا تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ احمدی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھائی۔ میرے پاس جعفری صاحب اس ٹائم تھوڑا سا کم ہے، تو ہم پھر کبھی کر لیں گے۔ یہ ینگ لوگوں کو جو ہے نا ذرا اپنا خون، اچھا ذرا جوش بنی بات کے چلے پڑی۔ میرے سوال کا جواب ہے یہ کوئی نہیں، کیونکہ جعفری صاحب نال بات ہوتی ہے تسلی کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک انتہائی سنجیدہ اور بڑے خوش اخلاق انسان ہیں، اللہ ان کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ نہیں میرا خیال ہے طارق ڈیڈی تھی جاتے ڈرامے میں کریں رہا، میں سنجیدہ نا۔
अच्छा बात ये है कि अच्छा इस पे जरूर रोशनी डाल दीजिएगा। ये जो फिरका वारियत की बात हो रही है, जिस वक्त ये आयत नाज़िल हुई है कुरान पाक में, उस वक्त शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी या अहमदी का कोई वजूद भी नहीं था, कोई नामो निशान भी नहीं था। तो ये ज़रा रोशनी फरमा दीजिए, साहिब इल्म हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, कि ये किन फ़िरकों की बात हो रही है, किन के मुतल्लिक बात हो रही है, क्योंकि ये हमेशा मैं सुनता हूँ कि लोग